Hello friends, welcome to my channel, and today this video is for the students of MA in English Literature, and this is the play Twelfth Night written by William Wordsworth. Today I will explain one of the question from the play Twelfth Night, that is Twelfth Night as a romantic comedy or romantic and comic elements in Twelfth Night. So it is written by William Shakespeare. So let's start. William Shakespeare was the greatest dramatist. He was mainly known for his drama. He is considered one of the greatest writer in the world literature for his depth of understanding of human character and life in general. जैसे कि पहले भी किंग लियर में भी मैंने आपसे बताया था, when I was explaining किंग लियर, कि सबसे पहले हमें कुछ लाइंस जो है राइटर के लिख देने चाहिए. दैट बिकम बाय राइटिंग दिस लाइंस वी मेक आवर आंसर इम्प्रेसिव. एमए लेवल पर ये ज़रूरी होता है और कोटेशंस भी डालना ज़रूरी होता है. सो दिस लाइंस, मैं आपको इसमें हर एक लाइन को हिंदी में एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बट वेन एवर देर विल बी एनी डिफ़िकल्ट लाइन एंड एनी डिफ़िकल्ट वर्ड, देन आई विल एक्सप्लेन टू यू, बिकॉज इतना ज़रूरी नहीं है, because you are at the level of MA in English literature. He has written many plays like King Lear, As You Like It and Twelfth Night, etc. Ben Jonson. Shakespeare was the master of bright Apollo's lute. This is the quotation line. Twelfth Night is a romantic comedy. अब यहाँ से क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट होता है. A Shakespearean comedy is a romantic comedy. इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोमांस एंड कॉमेडी. तो ट्वेल्थ नाइट जो है ये रोमांस और कॉमेडी का कॉम्बिनेशन है. इट इज़ अ टेल मीन स्टोरी, टेल ऑफ एंडिंग विथ अ टेल ऑफ लव एंडिंग विद रिंगिंग ऑफ मैरिज बेल्स. तो ट्वेल्थ नाइट क्या है? एक ये लव की टेल है जो कहाँ ख़त्म होता है? मैरिज बेल्स पर ये ख़त्म होता है. ट्वेल्थ नाइट इज़ अ रोमांटिक कॉमेडी. The word romance in general means passionate love between men and women, though it has certain other meanings as well as romance. तो जो रोमांस है उसको जनरली पैशनेट लव, जो मैन एंड वीमेन के बीच में पैशनेट लव होता है, सिर्फ उतना ही कंसीडर किया जाता है, लेकिन लिटरेचर में इसका अलग मीनिंग भी निकलता है. सो इट इज़ द फ्रेंडशिप ऑफ एंटोनियो एंड सेबेस्टियन इज़ डेफिनेटली रोमांटिक. एंटोनियो और सेबेस्टियन की जो फ्रेंडशिप है उसको भी रोमांटिक कहा गया है. द वर्ड रोमांस ऑल्सो इम्प्लाइज डेंजर, एडवेंचर एंड हेरोइक स्पिरिट. ये आपको जानना चाहिए बिकॉज यू आर द स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, कि रोमांस का लिटरेचर में मीनिंग जो है डेंजर, एडवेंचर और हेरोइक स्पिरिट से भी लिया जाता है. जैसे कि हम विलियम वर्ड्स को भी एक रोमांटिक पोइट कहते हैं. We find in the play this clearly in the daring means bravery दिखाना, which both Antonio and Sebastian show in facing Sir Toby and Andrew. Sir Andrew, तो ये डेयरिंग कब दिखाते हैं वो एंटोनियो और सेबेस्टियन, जो वो किसको फेस करते हैं? सर टोबी एंड सर एंड्रयू को. अकॉर्डिंग टू मार्क हंटर, इन अ रोमांटिक कॉमेडी द मेन स्ट्रेस इज ऑन द स्टोरी ऑफ दीज लव्स, a story treated seriously, moving through a number of checks and trying complications to a prosperous ending. These are the quotation line. You have to take them as it is. The chief romantic element in the play is of course sexual love of a passionate kind. So जो chief romantic element जो इसका है वो क्या है? Sexual love of a passionate kind. It is the very opening scene we find Duke Orsino pining. Pining means तड़प रहा है वो for Lady Olivia with whom he had fallen in love. वो किससे प्यार करता है? ओलिविया से. ओलिविया उससे प्यार नहीं करती. Asking his musician to continue playing music on their instrument because he believes music to be the food of love. अपने म्यूजिशियन से क्या कहता है? कंटिन्यू रखो, म्यूज़िक को प्ले करना कंटिन्यू रखो, क्योंकि म्यूज़िक ही जो है फूड है लव का.
Love, he says, has the power to give rise to countless shapes and images in the human mind. लव में ऐसा पावर है कि वो ह्यूमन माइंड में काउंटलेस शेप्स और इमेजेस बना सकता है. He goes on to speak of love as high fantastical. Fantastical means बहुत ज़्यादा wonderful. Then Duke speaks in a poetical manner. अब ड्यूक खुद पोइटिकल मैनर में क्या बोलता है? अबाउट हिज अमोरस डिज़ायर. अमोरस मीन्स जो फिजिकल लस्ट या फिजिकल डिज़ायर्स जो हैं, विच आर परसुइंग हिम इन द सेम मैनर इन विच मर्सीलेस हॉर्न्स. हॉर्न्स मीन्स जो डॉग होते हैं, उनकी एक स्पीसीज है ये, परस्यू अ डियर. जैसे कि जो हॉर्न्स हैं वो एक डियर को परस्यू करते हैं, उसी तरह से वो अपने अमोरस डिज़ायर की वजह से अपना जो लेडी लव है उसका ओलिविया के लिए उसको वो परस्यू कर रहा है. द ड्यूक इज़ ऑब्वियसली अ रोमांटिक काइंड ऑफ लवर. लेटर इन द प्ले द ड्यूक स्पीक्स अबाउट द ब्यूटी ऑफ हिज बिलवड ओलिविया, describing her as the miracle and queen of gems. He further says, no woman's heart is so big to hold so much. अभी वो ड्यूक और जीनो जो है अपने लेडी लव ओलिविया के लिए ओलिविया की तारीफ भी करता है. वो उसे मिरेकल बताता है और जेम्स की क्वीन बताता है. He then points out to Cesario that Olivia is so great that there can be no comparison at all between the quality of his love and the quality of any woman's love for a man. अब ये सिजेरियो है, ये एक्चुअल में एक लड़की है जिसका नाम वियोला है और ये एक मैन के रूप में डिस्गाइज है और ड्यूक के पास जॉब करती है. तो ड्यूक सोचता है कि एक लड़का है जबकि एक लड़की है. तो वो ड्यूक उसको कहता है अपने लव के बारे में, जो ओलिविया से वो प्यार करता है, ओलिविया की जो वो उसके सामने तारीफ़ करता है. ऑल दीज स्पीचेस शो दैट ही इज़ अ ट्रूली रोमांटिक लवर. और जो हमें पता चलता है कि ओरिजिनो ओलिविया के बारे में क्या क्या कहता है, उससे हमें पता चलता है कि वो एक ट्रू रोमांटिक लवर है. इन द एंड वी रियलाइज दैट द ड्यूक्स लव इज़ नॉट लव इन द ट्रू सेंस ऑफ वर्ड. लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि उसका लव ट्रू लव नहीं है. एट दैट पॉइंट ऑफ कोर्स आवर इल्यूजन अबाउट द ड्यूक बीइंग अ रोमांटिक इज शैटर्ड. और जब हमें ऐसा पता चलता है तो हमारा जो इल्यूज़न होता है, इल्यूज़न मीन्स वहम, कि ड्यूक तो एक रोमांटिक लवर है, ये जो हमारा इल्यूज़न है वो शैटर हो जाता है, बिखर जाता है. अकॉर्डिंग टू नाइट, love of Duke is luxurious, abundant to one pervading impression. ये सिर्फ इम्प्रेशन ही झाड़ता है, एक्चुअल में ये उससे प्यार मतलब उसका प्यार रियल नहीं है. Olivia's love is definitely genuine than that of, लेकिन जो ओलिविया का लव है वो डेफिनेटली जेन्युइन है. इसका लव एकदम सही है. इस प्ले में एक ट्रू लव है इसका ओलिविया का, जो कि डिस्गाइज है सिजेरियो के रूप में, एक आदमी के रूप में डिस्गाइज है. और वो किससे प्यार करती है? ओलिविया ड्यूक से प्यार करती है, ड्यूक और जीनो से. और वो डिस्गाइज है सिजेरियो के रूप में और उसके पास जॉब करता है, मतलब करती है. ओलिविया फॉल्स इन लव विद सिजेरियो विदाउट नोइंग द रियलिटी दैट शी इज़ अ वुमेन इन डिस्गाइज ऑफ अ मैन. अब जो ओलिविया है, यहाँ मिस्टेक हो गई, सॉरी. ओलिवियाज लव इज़ डेफिनेटली जेन्युइन देन दैट ऑफ ड्यूक. लेकिन जो ओलिविया है उसका प्यार सच्चा है और देन दैट ऑफ ड्यूक. ड्यूक के बजाय ओलिविया का प्यार सच्चा है. ओलिविया वो लेडी है जिससे ड्यूक प्यार करता है. और जो मैंने पहले आपको बताया वो वियोला के बारे में बता दिया बाय मिसअंडरस्टैंडिंग. सो लेट्स स्टार्ट. ओलिविया फॉल्स इन लव विद सिजेरियो. ओलिविया किससे प्यार करती है? सिजेरियो से. सिजेरियो है एक्चुअल में वियोला, एक लड़की है और एक आदमी बना हुआ है ये. तो ये ओलिविया जो है सिजेरियो से प्यार करने लगती है विदाउट नोइंग द रियलिटी दैट शी इज़ अ वुमेन इन द डिस्गाइज ऑफ अ मैन. हर लव इज़ ऑलवेज रिगार्डेड एज बीइंग मोर रोमांटिक. व्हेन Cesario comes with another message of love from the Duke, Olivia is unable to restrain means रोक पाना, herself
एंड मेक्स अ कैंडिड, कैंडिड मीन्स क्लियर या स्ट्रेट, एकदम सीधा सीधा स्पष्ट बोल देना, कन्फेशन ऑफ हर लव for Caesareo, telling him that she loves him so much that neither wit nor reason can hide her passion. तो जब दोबारा से सिजेरियो ड्यूक का मैसेज लेके ओलिविया के पास आता है या आती है, उस वक्त ओलिविया जो है अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और वो सिजेरियो को बोल देती है कि वो उससे प्यार करती है, जबकि वो उसकी रियलिटी नहीं जानती कि वो तो एक लड़की है जिसका नाम वियोला है. She tries to influence Caesario's mind by speaking in an aphoristic manner. Have sought is good, but given unsought is better. कुछ मांगने पर मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन बिना मांगे मिल जाए वो तो बेटर है. However, even this romantic love eventually proves to have been futile. लेकिन ये लव जो है पूरी तरह से फ्यूटाइल होता है, मतलब वेस्ट जाता है, क्योंकि वो तो एक्चुअल में लड़की है. ओलिवियाज पैशन अल्टीमेटली लीड्स टू नथिंग बिकॉज शी गेट्स बिट्रोथ टू सिबेस्टियन, क्योंकि वो किसके मंगेतर बन जाती, बिट्रोथ मीन्स मंगेतर बन जाना, किसकी बन जाती है, सिबेस्टियन. अब सिबेस्टियन कौन है, हु इज़ सर्टेनली सिजेरियोस ट्विन ब्रदर, और ये सिबेस्टियन जो है सिजेरियो का ट्विन ब्रदर है, जो कि बिल्कुल सिजेरियो जैसा दिखता है. ये भाई है, ये बहन है, लेकिन ये भी अब लड़का बनी हुई है वियोला, तो और एक तो ये पहले से ट्विन है, जुड़वा है, तो इन दोनों की शक्ल एकदम मैच करती है. दस दिस पैशन इज सर्टेनली रोमांटिक एज लॉन्ग एज द डिस्क्लोजर अबाउट सिजेरियोज रियल आइडेंटिटी इज नॉट मेड टू दोज कंसर्न्ड. तो जब तक कि सिजेरियो की रियल आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होती तो ये लव एक रोमांटिक लव बना रहता है. इट इज़ वियोलाज पैशन फॉर ड्यूक विच प्रूव्स टू बी मोस्ट ट्रूली एंड जेन्युइनली रोमांटिक. अब जो वियोला का पैशन है ड्यूक और जीनो के लिए, ये ट्रू है और जेन्युइन रोमांटिक है, ये रोमांटिक है और ट्रू है. वियोला किससे प्यार करती है, ड्यूक और जीनो से, और ड्यूक और जीनो को नहीं पता कि ये एक लड़की है. She too falls in love at first sight and she inwardly resolves to marry the man who has caught her fancy. Whoever I woo myself would be his wife. तो वो क्या करती है, वो अपने आप को पूरी तरह से रिजॉल्व कर लेती है कि वो इसी आदमी से शादी करेगी जिसने उसके मन को एकदम जीत लिया. Caught her fancy. This is undoubtedly a romantic passion, and later even Sebastian's state of mind after Olivia has received him is something romantic. और जब सिबेस्टियन का जो स्टेट ऑफ माइंड है वो भी चेंज हो जाता है जब ओलिविया उसको रिसीव करती है, अपने महल में ले जाती है और वो उसको प्रपोज कर देती है. ओलिविया एक्चुअली उसको प्रपोज कर देती है. पहले उसको कुछ समझ में नहीं आता कि चक्कर क्या है, क्योंकि वो कभी उससे मिला नहीं था, उसको जानता नहीं था, लेकिन ओलिविया जो है वो सिजेरियो से प्यार करती है और सिजेरियो इसकी ट्विन सिस्टर है. He looks around him. After coming out of Olivia's house, he says to himself, "This is the air that is the glorious sun. This pearl she gave me. I do feel it and see it." सिबेस्टियन हैरान हो जाता है कि ये इतने महल में रहने वाली ये लड़की अचानक मुझे लेके जाती है, मुझे प्रपोज करती है, शादी के लिए प्रपोज करती है. शुरू में उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन बाद में सब कुछ उसको, ओलिविया भी अच्छी लगती है, उसका महल, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा लगता है. द रोमांटिक कैरेक्टर ऑफ द प्ले इज एनहेंस्ड ग्रेटली बाय द 2 songs ऑफ लव विच द क्लाउन सिंग्स. द फर्स्ट सॉन्ग ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है. इससे रिलेटेड क्वेश्चन नेट में भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आ जाते हैं कि ये सॉन्ग किसका है. तो ये फर्स्ट सॉन्ग है क्लाउन का. ओ मिस्ट्रेस माइन एक्सप्रेस द लवर्स विश फॉर हिज स्वीट हार्ट टू कम टू हिम इमीडिएटली. In the play, Shakespeare uses a special technique of self-deception. Self-deception means अपने आप से धोखा खाना, अपने आप मतलब खुद को ही धोखा देना. पर्टिकुलरली इन द केस ऑफ मेलवोलियो. अब मेलवोलियो सर्वेंट है कहाँ पे, ओलिविया के पैलेस में. हु इज़, ये खुद ही अपने आप से धोखा खा जाता है. हु इज़ अ लाइफ इनकारनेशन ऑफ
सेल्फ लव, वो अपने आप को ही बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो सोचता है कि ओलिविया उससे प्यार करती है, मतलब जो प्रिंसेस है ओलिविया उस महल की, वो उससे प्यार करती है। एंड एज सच ही इज़ द ग्रेटेस्ट विक्टिम ऑफ सेल्फ डिसेप्शन ऑल्सो, तो इसीलिए वो सेल्फ डिसेप्शन का विक्टिम बन जाता है। द कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट मेलवोलियो हैज़ बीन डिसीव्ड बाय मारिया and Sir Toby to provide the audience with an ample food for entertainment. इसके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कौन करते हैं? मारिया करती है और सर टोबी करते हैं। एक मजाक करते हैं इसके साथ, एक कॉन्स्पिरेसी कर लेते हैं इसका मजाक उड़ाने के लिए और ऑडियंस को बहुत ज़्यादा एंटरटेन करने के लिए। मारिया हैज़ स्टडीड मेलवोलियोस करेक्टर वेल, मारिया बहुत अच्छे से उसको करेक्टर को जानती है। शी देयरफॉर बिल्ड्स हर प्लान before him. A letter which Malvolio picks up from the ground seems to him to have been written by Olivia, though actually it has been written by Maria. तो मेलवोलियो को एक लेटर मिलता है। मेलवोलियो क्या सोचता है कि ये लेटर ओलिविया ने लिखा है उसके लिए, जबकि लेटर किसने लिखा होता है? मारिया ने। और मारिया इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें लिखती हैं और ओलिवियो जो मेलवोलियो है वो उन चीज़ों को फॉलो करता है और सभी उसको देखते हैं। वो एक मतलब कॉमिक कैरेक्टर बन जाता है, लोग उस पर हंसते हैं। कुछ उटपटांग चीज़ें होती है कि येलो कलर की स्टॉकिंग्स पहनाना, ये बोलना, ऐसे बोलना, ऐसा कुछ करके होता है। तो समरी में आप ये देख लोगे या आगे किसी क्वेश्चन में। मेलवोलियो डज एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द सजेशन इन द लेटर एज दस ही बिकम्स अ कॉमिक कैरेक्टर। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लैम्ब, Malvolio is not essentially ludicrous. Ludicrous means जो नॉनसेंस टाइप, ऐसा एक्चुअली में है नहीं। He becomes comic by accident, लेकिन ये तो एक्सीडेंटली कॉमिक बन जाता है। Some of the comic situation in the play results from mistaken identities. और कुछ कॉमेडी इस प्ले में कैसे आती है? मिस्टेकन आइडेंटिटी से आती है। जैसे कि ओलिविया जो है सिजेरियो से प्यार करती है, सिजेरियो एक्चुअल में वियोला है और वो मिसअंडरस्टूड करके सेबेस्टियन को अपने महल में ले जाती है, उसे प्रपोज कर देती है ये सोच के कि ये सिजेरियो है। सेबेस्टियन अपने मतलब कंफ्यूज हो जाता है कि ये कर क्या रही है, अचानक से इसको मुझसे प्यार हो गया, शादी के लिए प्रपोज कर रही है। तो ये सारी चीज़ें जब ऑडियंस के सामने आती, रीडर के सामने आती है, तो ये ह्यूमर क्रिएट करता है। एवरी रिमार्क मेड बाय द क्लाउन इन इज विटी वन, दस वी सी दैट द प्ले इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉमिक एंड रोमांटिक एलिमेंट्स। तो इस तरह से ये जो प्ले है वो कॉमिक और रोमांटिक एलिमेंट का मिक्सचर है। टू सम अप, ट्वेल्थ नाइट इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ शेक्सपियर्स रोमांटिक कॉमेडी। देयर इज़ ऑलवेज अ स्किलफुल इंटरवोविंग ऑफ द रोमांटिक विद कॉमिक एलिमेंट्स। तो ये एक बहुत अच्छा इंटरवोविंग है रोमांटिक और कॉमिक एलिमेंट का। दिस रोमांटिक कॉमेडी इज़ परवेडेड विद द स्पिरिट ऑफ लिटरेचर एंड जेंटिलिटी। तो ये स्पिरिट ऑफ लिटरेचर और जेंटिलिटी, जेंटिलिटी मीन्स बहुत ज़्यादा सिंपल और जेन्युइन होना। दिस कॉमेडी इज़ हाइटेंड बाय एन एक्सक्विजिट मीन्स एक्सीलेंस, एक्सीलेंट, बेस्ट रोमांस इंटरवोवन विद द कॉमिक अंडरटोन्स। तो ये जो प्ले है वो एक एक्सीलेंट रोमांस है जो किसके साथ मिला हुआ है? इंटरवोवन किसके साथ है? एक कॉमिक अंडरटोन के साथ इंटरवोवन है। सो दिस इज completed, and if you like this then please press the button like and subscribe. Thank you.